हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में मैंने गोएथे इंस्टीट्यूट का B1 का श्राइबन पार्ट है उसको कवर करने की कोशिश की है. सो देर इज इनफॉर्मल ईमेल और ब्रीफ लेटर समटाइम्स and formal also. The first one is informal normally. So jemand hat das eigentlich schon geschrieben und dann es gibt aber hier auch einige Fehler. Wir checken. Ich habe das ja auch hier so erwähnt. जो भी मिस्टेक्स रह गई है इसमें उनको पॉइंट आउट किया है मैंने. So first of all, das ist eine E-Mail. So darf man dann nicht Datum schreiben. ईमेल अगर है तो डेट लिखने की जरूरत नहीं है. ईमेल में तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है ना, अगले के पास वैसे ही चला जाता है. सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. Also man braucht das gar nicht. Ja, also das ist ein Fehler. Und Jayavardhan ist männlich. It's male. So not Liebe. It should be lieber. Natürlich, das ist groß, aber hier muss man klein schreiben. कोमा के बाद में यहाँ जो फर्स्ट लाइन स्टार्ट होती है उसमें स्मॉल लेटर आएगा, कैपिटल नहीं आएगा. Also das ist ein Fehler hier. It's a mistake. Und Dank ist der Dank. It's noun. So first letter capital. Vielen Dank für deine E-Mail. Yes, it's informal. So deine. That's right. Ich habe mich sehr darüber gefreut. You have sent me E-Mail. I'm very happy about it. Also, sich freuen über. Das ist gut. Und dann hat man hier Gratulation geschrieben. Warum? Checken wir mal. Wie ich höre, du hast eine neue Arbeit gefunden. As I hear, you have got a new job. Und verdienst jetzt dein Geld bei Deutsche Bank. And now you are earning your money from this company. Deutsche Bank से उसको अब मिल रही है तनख्वाह. So gratulation should come after that. कुछ होने तो दो. सो ये जो इन्फॉर्मेशन है नई जॉब की, ग्रेटुलेशन इसने पहले ही लिख दिया, इसको होना चाहिए इसके बाद. Du hast einen Job bekommen und dann verdienst du jetzt Geld hier bei Deutsche Bank. So Gratulation उसके बाद आना चाहिए. Then erinnerst du daran noch? Do you still remember? Als wir in der Schule waren. So when we were in school, haben wir immer davon geträumt, eines Tages bei Siemens oder Deutsche Bank zu arbeiten. याद है तुमको, हम लोग सपने देखा करते थे कि कभी जॉब लगेगी तो ऐसी कंपनी में करेंगे, मौका मिला तो. सो als कनेक्टेड यूज कर लिया यहाँ पे. इट्स नाइस. या als कनेक्टर है तो वर्ब लास्ट में है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. und eines Tages यहाँ गेनेटिव यूज कर लिया, ठीक है. जिस फ्रॉइन यूबर एरिनरन an, sich erinnern an. Okay, great. Erinnerst du dich daran आना चाहिए ना, जिस erinnern an. Erinnerst du dich होना चाहिए इसमें, ये मिस्टेक. Erinnerst du dich. जिस erinnern an के लिए erinnerst du dich daran. Dis इसमें मिस्टेक है. ओके, नेक्स्ट. इन der Zwischenzeit habe ich, यहां भी इसने सब्जेक्ट को मिस किया था जो मैंने लिख दिया अभी. इन der Zwischenzeit, in between, habe ich Deutsch gelernt und arbeite jetzt als Lehrer bei ELS German Speakers Club. सो इसमें लिखा गया है कि इन बिटवीन तुमको जॉब मिल गई विधाई. मैं भी इस बीच में जर्मन सीखी है मैंने भी. एंड नाउ आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी जर्मन स्पीकर्स क्लब. Die Arbeit macht mir großen Spaß. यहाँ पे मिश लिख दिया था गलती से, इसको करेक्ट किया है मैंने mir. Die Arbeit macht mir großen Spaß. Obwohl es manchmal ziemlich anstrengend ist. Although it is sometimes very tiring. Yeah, but I'm happy. I'm enjoying the work. Yeah. Komm mal zum Besuch. कभी मिलने आओ यार. Ich hoffe, bald wieder etwas von dir zu hören. I hope means I wish I will hear again from your side. Viele Grüße. viele यहाँ छोटा कर दिया था इसने, सो इसको कैपिटल किया है मैंने. Viele Grüße देवकरण. Yes.
सो इस तरीके से आपको 2-3 जगह पे ऐसे आपकी ग्रामर दिख जाए। इसका एक फॉर्मेट होता है बाकायदा कि अगर ये तभी लिखना है जब ब्रीफ लिखा हुआ हो। एग्जाम में अगर बाकायदा क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि श्राइबन जी einen ब्रीफ, ओनली देन यू विल मेंशन डेट, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। देन ऑलवेज लीबर या लीबे अकॉर्डिंग टू मेल और फीमेल, हियर इट इज मेल दैट्स वाई लीबर, एंड देन स्मॉल। ओके, 2-3 जगह आपको ग्रामर आपकी दिख जाए, जैसे इसमें आल्स यूज किया है, जिश एरिनरन अन कर दिया, जिश फ्रॉइन यूबर यूज कर लिया, आल्स का यूज हो गया यहाँ पे। सो ये एक तरह से सैल्यूटेशन, हाउ यू स्टार्ट, राइट, लीबर लीबर करके, एंड देन यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द मेल, थैंक यू वगैरह से स्टार्ट किया। फिर ये मैन बॉडी आ गई जिसमें आपने उसको जो भी मैसेज था मैन वो दे दिया, और उसके बाद में आपकी तरफ से अपनी कंडीशन आपने बता दी, एंड देन लास्ट में 2-3 पॉइंट जो होते हैं वो सारे टच होने चाहिए। उसमें जनरली दिया हुआ होता है कि ये ABC तीनों पॉइंट्स पे कुछ लिखना है। सो 1-2 लाइन लिख के उसको फिनिश करना है। यहाँ पे मैन बॉडी इसकी फिनिश हो गई। देन क्लोजिंग पार्ट, क्लोज करते हो तब आई होप ऑर्डर श्राइब मी अ बाल्ड, जनरली आप लिखते हो श्राइब मी अ बाल्ड, ओके, एंड फील ए ग्रीश है, ये एक तरह से फिर से ग्रीटिंग आप कर देते हो, ग्रीट कर देते हो, एंड देन नेम। यहाँ पे फुल नेम नहीं आना चाहिए, फोर नाम है, क्योंकि फुल नेम तो फॉर्मल लेटर में आता है या फॉर्मल ईमेल में आता है, इनफॉर्मल में नहीं आता। और इनफॉर्मल में हर जगह आपको डुत्सन मतलब डू से बात होगी, एंड फॉर्मल में हर जगह जी से होगी। तो यहाँ पे देखो इंपेरेटिव भी यूज हो गया, तो ये भी डुत्सन हो गया, डियर आ गया डुत्सन। जहां भी आपको सेंटेंस दिखेगा उसमें डुत्सन ही होगा, जित्सन नहीं होगा, मतलब रेस्पेक्ट से जो जी वाली बात है वो नहीं दिखेगी। डाइने यहां पे डुत्सन हो गया, डू जहां भी दिखेगा आपको डू से होगा ये, गुड। देन इसके अलावा दूसरा एक और है जो कि फॉर्मल लेटर भी इसमें लिखा है। फॉर्मल लेटर थर्ड वाला जो श्राइबन पार्ट है वो फॉर्मल होता है जनरली। फॉर्मल में यहां भी देखो ये ईमेल है, सो दिस डेट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स वाई इसको मैंने कट किया है। एंड ज़ेर गेट दामन उंड हेरन, जनरली आप अगर ऐसे किसी ऑफिस को लिख रहे हो जिसको आप जानते नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल उस पर्सन को नहीं जानते आप, गवर्नमेंट ऑफिस को लिख रहे हो, आपको नहीं पता है कि वो जो ईमेल जाएगा उसको कोई मेल ओपन करेगा, पढ़ेगा या फीमेल। So if you don't know at all about that, then sehr geehrte Damen und Herren, this is a fixed format. Respected sir, madam, हमको पता ही नहीं कौन रिसीव करेगा। So sehr geehrte Damen und Herren, यहाँ पे ई मैंने लगाया है, मिस्टेक कर दी थी, ई नहीं था यहाँ पे, कई लोग हेरन कर देते हैं, so ये ध्यान रखना है, it's plural and not because of weak noun. Then again here small letter, mit großem Interesse habe ich ihre Anzeige in Warum nicht wir gelesen। यहाँ पे पर्सन जॉब मांग रहा है, वो कह रहा है कि आपका एडवर्टीजमेंट मैंने इसमें वारूम निस्ट वियर करके जो जर्मन न्यूज़पेपर है इंडिया से, इसमें मैंने आपका एडवर्टीजमेंट देखा, और जहाँ भी है जित्सन आएगा इसमें रेस्पेक्ट के कारण ईरे, और ये भी एक फॉर्मेट है जो भी फॉर्मल है उसमें जेर गेरटे से स्टार्ट करते हैं। एडवर्टीजमेंट देखा मैंने इस न्यूज़पेपर में, इश व्यूर्डे मिश गेरने दी स्टेले आल्स रिपोर्टर बेवेरबन, इस व्यूर्डे काचवा यूज किया इसमें, यहाँ पे इश व्यूर्डे मिश पोलाइट भी हो गया, एंड आई वुड लाइक टू या स्टेला मीन्स जॉब वैकेंसी, इस जॉब वैकेंसी जो कि रिपोर्टर की है उसके लिए मैं अप्लाई करना चाहूँगा, पोलाइटली आप बोल रहे हो, जित्सन हो गया, रेस्पेक्ट। Ich bin 19 Jahre alt und habe an der Rajasthan Universität Journalismus studiert। आपने मेंशन कर दिया कि आपने जर्नलिज्म का आपका बैकग्राउंड है, आपने स्टडी भी की है, रिपोर्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रिलेटेड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। Ich schreibe gerne means I write means I love writing und oft gerne und oft often लिखता हूँ और खुशी से लिखता हूँ। Mir gefällt alles, I write almost about everything, Geschichten, Artikel, Blog, Aufsätze oder über Politik. Also das sind die Themen, die mir ja also gefallen natürlich. Ich würde mich freuen, wenn ich eine Chance für das Gespräch bekomme. I will be very much happy if I get a chance for interview.
मिट फ्रॉन्डलिशन ग्रूशन, ये एक फिक्स फॉर्मेट है। फॉर्मल लेटर में आप लोग मिट फ्रॉन्डलिशन ग्रूशन, यहाँ पे मैंने इसको ठीक किया है, एम छोटा कर दिया, सपोज ये कैपिटल कर दिया, ये छोटा कर दिया। सो ये रखना आपको, एम कैपिटल होगा, एफ छोटा एंड जी अगेन कैपिटल। यहाँ शॉन्श है, नाउन था तो इसको मैंने कैपिटल किया। यहाँ इश्क भी नया सेंटेंस है तो उसको कैपिटल लिखना है आपको। एंड आर्या कटारिया द नेम ऑफ द पर्सन, सिग्नेचर आपका दोनों, फिर इसमें फोर नाम है, नाख नाम है, दोनों आएंगे बिकॉज इट्स फॉर्मल ईमेल। सो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, टू द पॉइंट, बिकॉज इसमें 40 वर्ड्स और उसमें 80 वर्ड्स, ये चीज़ आपको खास तौर पे ख्याल रखनी है। आगे भी मैंने प्लान किया है कुछ रेगुलर इम्पोर्टेंट ईमेल्स लिख के आपको यहाँ पे यूट्यूब के जरिए आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच। आप अपडेट कर सकते हैं आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।